we will start discussing this primitive data types and what are the different types, how they work, everything. So for characters, it can be signed and unsigned characters. Similarly for integers, signed and unsigned integers, and within that there is normal integer, short integer, and long integer. Similarly for unsigned, same thing. And for float, we have float double and long double, and we also have a void data type, and we will see these details in the coming slides. But for now, you just have to see that there are few combinations: signed and unsigned char, and short and long int, double and long double for this float types. And we will see the now what are the sizes of it. So for short and long integers, let's see that what are the different ranges. Short integer has a size of 2 bytes and long integer has a size of 4 bytes. You can do this calculation. This limit can be calculated because it is 2 bytes. So we can say it is minus 2 to the power 15 to 2 to To the the power power 15 minus 1. 15 minus 1. Yes, sir. ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा. And after that program runs faster for this short integer. It can use this %d or %i as a printf. Within printf we can use this %d or %i. Then int or short integer, this can be written for it. So for long integers, we generally, when we normally use int, तो उसका जो रेंज होता है, जैसे हमने साइज प्रैक्टिकली भी वी हैव सीन ऑलरेडी इन लेक्चर्स. इफ आई डू साइज ऑफ इंट, तो उसका जो साइज होगा इट विल बी 4 बाइट. वो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके देखा विद इन क्लास ऑल्सो. And for that the range will be minus 2 raised power 31 to 2 raised power 31 minus 1. And according to this, it is saying that it will run slower compared to my short integer, obviously because of the size. More size to be picked, more time it will take. But generally what I have seen is practically when we say long int, we have to write it like this. So if I write long int a, then only we have to use this printf, and within that we will use %ld. So this is the practical example that I have already seen, I have already implemented. I will show you this right now. So you can say this as long or long int. I will share my screen and show you practically what I'm saying. Just give me a second. And it is also written at that when a variable is declared without the short or long keyword, the default is short signed integer. So theoretically, maybe it is 2 bytes in memory, but then we have seen practically that it is 4 bytes. So if you are asked about the size, theoretically, you have to follow this slide that for a by default integer, the size will be short signed integer size. So it will be 2 bytes. So give me 1 second. I will take you to the practical compiler. Uh, C compiler online. Let's see the example. Just a second. Can you see my compiler screen? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So now if I write int a equal to 10 and I do, let's say, int s equal to size of a, and I do the printf. Let's see what is the size of, अरे कहाँ गया यार, ये रहा, %ds. So let's see the size of the our integer, that is by default int a equal to 10. So it is saying 4 bytes. But if I use long int here, so long integer, the size will be saved into it, and I will use now, because I'm not printing the value of long integer. तो यहाँ पे मैं ld नहीं कर रहा. ये जो % है वो s के लिए है, which is integer only. तो उसमें 4 है या क्या है, वो integer ही है. So this long integer is 8 bytes. So according to me also, practically it is not 2 and 4, it is 4 and 8. But for the
theory purposes we will follow this slide. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, you will write that short integer has a size of 2 bytes and long integer has a size of 4 bytes because books में पुराना यही लिखा हुआ है and we might have to follow that. Practically we also know that the systems have updated. Now by default it is 4 bytes and 8 bytes, but you can do 2 and 4. Now let's discuss this short signed integer and short unsigned integer. So in this case, the sizes are 2 bytes only, but you can clearly see the difference is in the range. It is minus this thing to plus, so minus and plus will be there because we are talking about the signed, and for the unsigned it is 0 to 65,000. Now %d or %i can be written for short signed integer, but for the unsigned you can write %u. And similarly for long signed integers, the ranges have been written, and for unsigned also. So you can use this thing Sir, accordingly. practical basis for the short signed integer ये 4 bytes होगा और short unsigned ये 2 bytes होगा, ऐसा होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब शॉर्ट अनसाइंड वाला जो है वो भी 4 ही होगा, मतलब अगर ये 4 होगा प्रैक्टिकली तो ये भी 4 ही होगा। करके देखते हैं, रुको हम ये %u वाला करके देखते हैं। विल शो यू 1 सेकेंड। तो अगर मैं अनसाइंड इंटीजर करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल क्लियर द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे मुझे अनसाइंड लिख देना बस, ठीक है। अनसाइंड इंट है, उसका साइज है, उसका साइज प्रिंट करवा लेते हैं। तो देखो साइज 4 ही आया, 2 नहीं आया, ठीक है। तो चाहे साइंड है चाहे अनसाइंड है, साइज सेम रहेगा, तभी तो नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से उसका रेंज भी सेम है एक तरह का देखा जाए तो। अगर आप इन सबको ऐड करो, देयर आर 65,536 एलिमेंट्स इन दिस, on the left hand side as well as on the right hand side, 0 2 6 5 5 3 5. Okay, ठीक है। Okay, so let's see for float. For float it is %f, and for long double for this double you can use LF, ठीक है। तो LF is long float, तो लॉन्ग फ्लोट वाला डबल के साथ चलता है। वैसे भी हमने डबल के साथ भी हमेशा %f ही चलाया था लैब में भी। you have different labs, you are not with me, no issue. So the sizes are 4 bytes for float and 8 bytes for double, and the ranges will be accordingly, ठीक है। Obviously 4 bytes वाले का 32 2 raised per 31 minus 2 raised per 31 to 2 raised per 31 minus 1, I will write it ऐसे बोल के शायद किसी को समझ ना आए। It will be minus 2 raised per 31 to 2 raised per 31 minus 1, and for 8 bytes it will be minus of 2 raised per 63 to 2 raised per 63 minus 1, ठीक है जी। तो %f and %lf depending on आप क्या यूज कर रहे हो। And for long double it is said that it will take 10 bytes in memory instead of 8 bytes, it will be taking 10 bytes. Okay, moving ahead. Similarly we can do it for character also. Signed characters we have already seen, we know that the range is -128 to 127. %c can be written for this, and unsigned में भी %c ही आएगा, and you can write unsigned char by defining the unsigned character. Size is 1 byte only. सर कैरेक्टर में साइंड और अनसाइंड मतलब समझ नहीं आया। यस सर। देखो ऐसा है कि प्रैक्टिकली क्या होता है जब हम लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, आई विल शो यू प्रैक्टिकली। अच्छा सर, इसमें एस का टेबल यूज होता होगा शायद। एस का ही होता है, यस। तो मैं उसी ओके, पे आने इसीलिए लगा था। साइंड और अनसाइंड है। नहीं सुनो सुनो, अब देखो जो हमारा लेट्स से मैं नॉर्मल कैर लेता हूँ, लेट्स से आई हैव ए कैरेक्टर एंड कैरेक्टर ए कैन बी लेट्स से कैपिटल ए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे %d करके इफ आई राइट सी हियर, नॉट सी बट ए, तो बिकॉज मेरा कैरेक्टर कैर ए है ऊपर, स्मॉल ए वाला, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? इट विल बी एरर और इट विल बी प्रिंटिंग समथिंग। जल्दी से बताओ। प्रिंट करेगा सर। प्रिंट करेगा सर। क्या प्रिंट करेगा? 91 97। तो एरर आएगी ना, %d है। ओके, सो आंसर विल बी 97,
नहीं 65 है बिकॉज वी हैव कैपिटल ए। ओ अगर सॉरी, अगर अपर अगर केस है, लोअर केस है। हाँ, अगर लोअर केस होता तो 97 आता। तो देखो अब यहाँ पे ना, अगर मैं स्पेस डालूंगा तो स्पेस का भी अपना एक नंबर होता है, एंड दिस इज वेयर स्काई कोड कम्स। मतलब बाय डिफॉल्ट सबको लगेगा कि यार मैंने तो ऊपर कैर किया था और यहाँ पे हमने परसेंट डी कर दिया, परसेंट डी तो इंटीजर में करते थे, तो देयर शुड बी एरर। बट एरर नहीं आएगा इस केस में। क्या होता है, स्काई कोड प्रिंट हो जाता है। I will tell you what is a sky code. For example, if I write A to Z in capital, the range is 65 to 90. अगर मैं उसका बैकएंड पे sky code देखूं, sky code is something predefined. ठीक है, sky का फुल फॉर्म बताओ कोई, anyone? American Standard Code for Information Exchange, for Information Interchange. Sorry. Interchange, yes. So American Standard Code for Information Interchange, and इसमें क्या होता है that we have a predefined numbers associated to each and every character। ठीक है, अगर मैं स्मॉल a टू स्मॉल z करता हूँ, इसका 97 से 122 का रेंज होता है। टोटल 26 करेक्टर ही होंगे, तो ये भी 26 नंबर्स हैं, ये भी 26 नंबर्स हैं। सिमिलरली 0 to 9 काउंटिंग जो है, अगर ये करेक्टर में आएगी, 0 एक करेक्टर है, 1 एक करेक्टर है, ठीक है, अगर मैं 2 को भी एक करेक्टर प्रिंट करवा दूं, तो अगर वो नंबर नहीं और करेक्टर है तो उनकी जो रेंज है इट इज़ 48 to 57। सिमिलरली एक स्पेस होता है, जैसे ये वाला मैंने यहाँ पे स्पेस का एग्जांपल दिया था, इसका 32 है, तो स्पेस का मेरे को याद है, अदरवाइज ये वाले सारे मेरे को याद है, 65 to 90, 97 to 122 एंड 0 to 9 का 40 to 57। सो यू कैन ऑल्सो मे बी रिमेंबर दिस, इट विल हेल्प यू टू understand ASCII codes। ASCII का मतलब ये है that every character, it may be a backspace, it may be a space, it may be a hash, जो भी character होगा, टोटल 256 करेक्टर्स हैं, तो उनके सबके बैक एंड पे नंबर्स गिवन है 0 to 255। ठीक है, तो 0 to 255 तक की रेंज है, जिसमें से 97 to 122 मेरा स्मॉल a to स्मॉल z है, 65 to 90 इज माय कैपिटल A to कैपिटल Z। तो जो ये नंबर्स हैं ये इस रेंज में से उठाए गए हैं। ठीक है, तो दैट इज वेयर द रेंज कम्स। ओके, कमिंग बैक टू द स्लाइड। किसी का नेगेटिव भी होता है? मैंने बोला ना 0 to 255 ही होगा, मतलब इसमें जितना मेरे को याद है स्काई में 0 to 255 का ही होता है, नेगेटिव में नहीं होता। यहाँ बिकॉज साइंड वाले में तो नेगेटिव भी बता रहे हैं, तो उसमें हाँ वो रेंज का होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो दिस इज फाइनल, सो देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव स्काई कोड, सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, नाउ कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर, लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स। Variables is a meaningful name given to the data storage location in कंप्यूटर मेमोरी। सो अगर मैंने a को 10 किया, बाद में मैंने a को a+1 कर दिया, तो ऑब्वियसली a यहाँ पे मेरा प्रिंट करवाने पे 11 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो मेरा इनिशियल वेरिएबल था उसका मैंने वैल्यू चेंज कर दिया, बिकॉज नाउ दीज वैल्यूज आर चेंजेबल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि वो वैल्यू चेंज हो पा रही है। ठीक है, एंड वेरिएबल्स आर मीनिंगफुल नेम। अब आप कोई भी नाम दे सकते हो। व्हेन यूजिंग ए वेरिएबल वी एक्चुअली रेफर टू द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी। ये मैंने कई बार बताया दैट इफ यू सेव ए वैल्यू ऑफ a equal to 10, इट विल बी सेव्ड इन माई रैम समवेयर। ठीक है, हो सकता है उसका 1000 एड्रेस था, तो वहां पे वैल्यू विल बी लाइक दिस। सो उसको एक मेमोरी में लोकेशन मिल रही है, एंड दैट्स हाउ द डाटा इज बीइंग स्टोर्ड। इट कैन स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम। ऑब्वियसली अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है तो यू हैव टू रिप्लेस इट, इट विल बी रिप्लेसिंग द वैल्यू, ऐसे मल्टीपल वैल्यू नहीं आ जाएंगे एक जगह पे। एंड इस वैल्यू में भी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो वो 10 से 11 अपडेट होके काम किया जा सकता है। तो दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो सर एक चीज पूछना है फिर। हाँ जी, सर मतलब जैसे क्या नाम है, कोडिंग जब मैं कर रहा था थोड़ा बहुत, हाँ तो जी। उसमें सर मैंने दो अलग अलग प्रोग्राम बनाए थे। तो उसमें सर एक प्रोग्राम मैंने मतलब मान ली इंट ए लिखा है और ए की कोई मैंने वैल्यू असाइन कर दी। ओके, तो सर वो प्रोग्राम क्लोज करने के बाद जब मैं दूसरा लिख रहा था और उसमें मैंने ए की सर कोई वैल्यू मतलब अभी असाइन नहीं करी, और तब भी अगर वो वैल्यू आ रही तो सर कोई दिक्कत है हाँ जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद? देखो, अगर प्रोग्राम ये वाला जैसे 1.c था, सपोज
a1.c नाम का एक प्रोग्राम था, आपने नाम रखा कि मेरा a1.c है जिसमें मैं a को वैल्यू 10 दे रहा हूँ इनिशियली, और फिर एक मैंने दूसरा प्रोग्राम बनाया a2.c और उस प्रोग्राम में मैंने लिखा int a और सीधा जाके प्रिंट करवा दिया a। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे, लेट्स से यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ a इन बोथ द केसेस, तो इसमें तो आ जाएगा 10, पर इस केस में गार्बेज वैल्यू आएगा, इस केस में वो 10 नहीं देगा। गार्बेज वैल्यू का मतलब ये है दैट इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिंट समथिंग विच हैज नॉट बीन एलोकेटेड, तो उस केस में क्या होगा, वो मतलब ठीक है वो पास तो कर देगा कि ठीक है % d है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगा वो दे देगा एक इंटीजर के फॉर्म में, बट क्योंकि ये प्रोग्राम अलग था, इस प्रोग्राम को रैम में जगह अलग मिली थी। ठीक है, सपोज इसको a2.c को यहाँ पे जगह मिली थी एंड सिमिलरली a1.c को प्रोग्राम को ऊपर जगह मिली थी, तो उसने तो अपना काम ऊपर आया रैम में वो करवा लिया उस रेंज में। लेट्स से वो एड्रेस था मेरा 0 से लेके 50 तक का, बट 51 से 100 वाले में अलग प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में वो पुरानी कोई वैल्यू उठा लेगा गार्बेज जो उसको हमने असाइन नहीं भी करा, तो वो उस रैम में से कुछ ना कुछ कचरा तो उसको मिल ही जाएगा, राइट? तो इसलिए वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। नहीं सर, मतलब मैंने जो किया था उसमें सर मान लीजिए आप कि दूसरे वाले में एज इक्वल टू 10 ही आ जा रहा था, अगर मतलब आप ही के एग्जांपल से दें। आप मेरे को सेंड करना, ठीक है, अपना ईमेल मुझे कर देना, यू कैन डू इट, यू कैन सेंड मी योर कोड एट दिस ईमेल आईडी। वैसे तो दिस इज आल्सो अवेलेबल ऑन थापर वेबसाइट sahil.sharma@thapar.edu, तो यू कैन सेंड नहीं मी। सर, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब ये मैंने किया था, उसके बाद सर मैं ऐसे ही चेक कर रहा था तो मैंने जो .exe फाइल जो बन जाती है ना सर उसके बाद, तो वो सारी मैंने डिलीट कर दी, उसको डिलीट करने के बाद फिर सही आ गया। कोई ना, आप मेरे को सेंड करना, मैं एक बार अपने एंड पे चेक करना चाहता हूँ, जो भी आपने काम किया था मेरे को ईमेल कर देना, ठीक है? ठीक है सर। Okay, so now let's talk about this variable where we have int a equal to 10 and then printf %da, so we are printing the value of a, ठीक है, वो 10 यहाँ पे print हो जाएगा as it is, ये variable है, but now there are some rules for defining the variables. It must begin from a character or an underscore without spaces, so when you are writing a variable name it must be starting from a character, और उस केस में हमारे जो characters हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप #1 नाम का कोई वेरिएबल लेके आ रहे हो, ठीक है, सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज करना है। _1 जरूर कर सकते हो पर #1 नहीं कर सकते, *1 भी नहीं कर सकते, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो देखते हैं क्या कुछ लिखा है। इट मस्ट बिगिन विद कैरेक्टर और एन अंडरस्कोर विदाउट स्पेसेस, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन द वेरिएबल नेम, लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम वेरीज फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर, बट स्काई में अप टू 31 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम लेंथ रिकॉग्नाइजेबल है। एंड देन इट्स नेम शुड नॉट बी ए सी कीवर्ड। सी कीवर्ड क्या है? जैसे printf है, scanf है, ठीक है, int है, तो आप ये नहीं कर सकते int। तो दिस इज ए प्री डिफाइंड थिंग, राइट? सो वी कैन नॉट डू दिस थिंग, इसको हम वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते, तो ये कीवर्ड हो गया। इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केस, ठीक है जी, आप ये कर सकते हो int a या फिर कैपिटल A स्मॉल a, तो ऐसे कुछ करके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इट शुड नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट, उसमें किसी नंबर से शुरू नहीं करना, ठीक है, 1a नहीं लिख सकते, ये गलत है, a1 जरूर लिख सकते हो। ब्लैंक्स एंड कॉमास आर नॉट परमिटेड, ठीक है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो सी कीवर्ड के बारे में बता दो क्या था। सी कीवर्ड्स बहुत सारे हैं यार, मतलब जो भी हम अपना ऑटोमेटिकली बैकएंड पे जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग है, जैसे #include है ना, stdio.h, तो मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने वेरिएबल का नाम stdio रख लोगे, ये गलत है। अगर आप printf रखना चाहते हो नाम, ये गलत है, क्योंकि इनके पहले से कुछ मीनिंग डिफाइंड है चीजों के। यस सर। तो उस केस में दे आर कीवर्ड्स एंड वी कैन नॉट नेम देम, ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, सर 1A में क्या प्रॉब्लम है वो? रूल है कि नंबर से शुरू नहीं करना नाम, सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़ो, इट शुड नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट, ठीक है, बनाने वाले ने रूल बनाया कि डिजिट से शुरू नहीं करना। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स, इंट एम्पनम, तो इसमें अंडरस्कोर आ रहा है और बाकी नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं सारे, फ्लोट, सैलरी, ये ग्रेड, बैलेंस अमाउंट, अनसाइंड, शॉर्ट, इंट, वेलोसिटी। सो यू कैन कीप द नेम्स लाइक दिस, वेलोसिटी रख लिया, बैलेंस अमाउंट रख लिया, ग्रेड, सैलरी, एम्प्लॉय नम, सो दैट कैन बी नॉर्मल थिंग, राइट? लेकिन आप इसमें अगर बोलो कि मुझे एम्प्लॉय नम में इसकी बजाय मुझे कॉमा चाहिए, वो गलत है, तो अंडरस्कोर ही आ सकता है, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल। शॉर्ट इंट और इंट नॉर्मल इंट में डिफरेंस क्या हुआ? शॉर्ट इंट और नॉर्मल इंट तो सेम ही है, शॉर्ट इंट हो गया
या आप नॉर्मल इंट लिख रहे हो, तो ये तो सेम ही है, पीछे ये तो बताया है। लॉन्ग Long लॉन्ग interval लॉन्ग है। इंट के टाइम पे अलग लिखना होता है, लॉन्ग साथ में। ठीक है, और क्या कह रहे हो? नहीं सर, मैं तो वही कह था कि वो तो सेम में वो लॉन्ग इंट फर्क है। सो यू कैन इनिशियलाइज योर वेरिएबल्स लाइक दिस। ठीक है, फ्लोट को फ्लोट वाला नंबर दे दिया, पॉइंट वाला, इंटीजर को एक इंटीजर दे दिया, करेक्टर को एक करेक्टर दे दिया, तो ऐसे करके आप नंबर्स दे सकते हो। स्पेसिफिक नंबर ही दोगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। मतलब अगर आप ये करोगे कि इंट एम्प्लॉय करके इसको 7 के बजाय 7.5 कर दो, तो वो एक फ्लोट नंबर हो जाएगा, वो करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, इट विल गिव एरर के भाई मैं तो इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा था, आप मेरे को पॉइंट वाला नंबर भेज रहे हो। ठीक है, तो बी वेरी श्योर कि आप क्या असाइन कर रहे हो। बट अगर फ्लोट वाले में इंटीजर दे तो चलेगा? हाँ वो चल जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट उसको 0.0 लगा देगा पीछे। ओके। वो तो हमने ऑलरेडी करा भी है, एरिया ऑफ सर्कल में किया था। Okay, so moving on to constants. So there are some constants also. Constant can be a numeric constant और एक character constant, कोई भी ऐसा चीज जो मैं फिक्स रखना चाहता हूँ, जिसको मैं चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, तो a constant is an entity whose value does not change during the execution of a program. तो constant मेरे पास numeric भी है, character भी है, and for that case integer constant में आप जैसे 10 दे दो, 0 दे दो, 20 दे दो, या कुछ ऐसे फिक्स कोई चीज़ दे दो, कोई भी दे दो। दिखने में सारे वेरिएबल लग रहे हैं, पर आप क्या करोगे, जितना मेरे को याद है, इट शुड बी लाइक कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 10। तो आप यहाँ पे इसको ए इक्वल टू ए प्लस प्लस ए इक्वल टू ए प्लस 1 करोगे, तो प्रिंट ए करना उसके बाद। तो जितनी मेरी समझ है, आंसर विल बी 10 ओनली, इट विल नॉट बी 11। लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल टेक यू टू द कोड। कि कांस्टेंट लगाने पे वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। सो लेट्स डू इट लाइक दिस, कांस्टेंट इंट a इक्वल टू 10, एंड मैं यहाँ पे कर दूँ लेट्स से प्लस प्लस a, कि मैं प्रिंट करवाते टाइम उसको एक ज़्यादा करके प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, और ऊपर मैंने कांस्टेंट बोल दिया, तो इसको रन करके देखते हैं, एरर आता है कि 10 प्रिंट होता है। सो इट इज सेइंग एरर इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। तो ये कह रहा है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं सिंपल ए प्रिंट करवाऊंगा तो इट विल बी 10। तो इसने एरर ही दे दिया, कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है। इन दिस केस उसने 10 आउटपुट दिया, अगर मैंने सिर्फ शराफत से ए लिखा। अगर मैंने सपोज इसको कुछ करना चाहा, लेट से मैंने यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस 1 कर दिया बीच में, तो ये फिर से एरर देगा कि जो ये मेरा कांस्टेंट नंबर आप डिफाइन कर रहे हो, इसका नंबर चेंज कैसे कर सकते हो। सेम एरर आ रहा है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। तो आप किसी भी रीड, इसको आप रीड ओनली वेरिएबल भी कह सकते हो। कांस्टेंट कह दिया तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, तो इट विल बी रीड ओनली वेरिएबल, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, कमिंग बैक टू द, तो कंपाइलर से ही फर्क पड़ सकता है, अगर डेव सी प्लस प्लस पे करते तब नहीं आएगा? करके देख लो अपने एंड पे, आंसर तो अपडेट नहीं होगा, ये गारंटी है। बिकॉज कांस्टेंट का मतलब ही चेंज हो गया अगर आपने वैल्यू चेंज कर दी। कांस्टेंट का मतलब है कि जो आपने बोल दिया वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप चाहे 10 बार उसको अपडेट करने का कमांड दे दो, या एरर आ जाएगा, या वो अपडेट ही नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। सो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर, जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया है। सो कांस्टेंट इंटीजर var वेरिएबल इक्वल टू 100, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे करके देखो, लिखा हुआ है गिव्स एरर दैट यू कैन नॉट मॉडिफाई द कांस्टेंट, और हमने वो एरर देख लिया है दैट यू कैन नॉट अपडेट ए रीड ओनली वेरिएबल। ठीक है, तो इफ़ यू हैव दिस इंट a इक्वल टू 10 एज ए कांस्टेंट, प्रिंट एफ a करोगे तो वो 10 कर देगा, लेकिन a इक्वल टू 20 करोगे तो वो अपडेट नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, तो 10 को 20 नहीं कर सकता बिकॉज वो कांस्टेंट है। सिंपल वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, बॉक्स खुला है, वो कांस्टेंट वाला बंद है। So input and output statements. So let's talk about printf and scanf. So C language supports two input-output functions, which are printf and scanf. And printf is used to convert the data stored in a program into a text stream for output to the monitor. इसका क्या मतलब है स्टेटमेंट का, कोई समझाएगा? What is तो कि the, हाँ बताओ। तो जो भी अपन डाटा स्टोर किए इनटू इन अ प्रोग्राम, कि उसको वो टेक्स्ट स्ट्रीम से उठाएगा इनटू अ टेक्स्ट स्ट्रीम, सॉरी क्या कहते हैं। सिर्फ इतना बता दो, देखो क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है। वो ये कह रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है, वो जो भी आप उसका डाटा स्टोर कर रहे हो उसके अंदर, या तो आप वेरिएबल्स को प्रिंट करवा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वो इस चीज को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है, इट विल बी ए टेक्स्ट स्ट्रीम, वो एक टेक्स्ट के फॉर्म में उसको प्रिंट कर देगा। सपोज यू आर डूइंग दिस a equal to 10 एंड देन यू सेड printf
let's say a equal to %d. In this case also आपका यही होगा कि वो नंबर वहाँ पे जाके एज ए टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, तो a इक्वल टू 10 एज ए टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, ये वाली चीज़, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि आपका जो भी आउटपुट है, जो भी आउटपुट आएगा वो टेक्स्ट स्ट्रीम के फॉर्म में आएगा, वो एज ए टेक्स्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा जो भी कोड्स के अंदर होगा, ठीक है, टू द मॉनिटर। तो वो तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि आउटपुट हमारा मॉनिटर पे शो होता है। सिमिलरली जो स्कैनएफ है, स्कैनएफ इज यूज्ड टू कन्वर्ट द टेक्स्ट स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम द कीबोर्ड. Sorry for the disturbance. Scanf is used to convert the text stream coming from the keyboard to the data values and store them in a program variable. So जो भी आप दे रहे हो, it is used to convert the text stream. So whatever you are giving, let's say मैंने यहाँ पे किया %d and then I said %a. तो यही होता है मेरे scanf में, right? Scanf this thing. तो सेमीकोलन बाहर आएगा। तो इट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट स्ट्रीम, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे जो भी मेरा नंबर दिया होगा कमिंग फ्रॉम द कीबोर्ड टू द डाटा वैल्यूज एंड स्टोर्स देम इन द प्रोग्राम वेरिएबल्स। तो जो भी हम वैल्यू देंगे, सपोज ए में दिया जो भी हुआ, तो बैक एंड पे इट विल बी स्टोर्ड, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे 10 इनपुट दिया तो वो सेव कर लेगा, बट वो पिक तो यहीं से करेगा, राइट। तो ओके, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो जैसे कीबोर्ड से इनपुट आया एंड द वैल्यूज विल बी sent into the memory through the scanf, and memory में से अगर बाहर लेके आना है to the output file or the monitor, it will be through the printf. Any doubt in this? No sir. नो सर। Okay, let's talk about printf more. प्रिंट का जो फॉर्मेटिंग है वो करते हैं इसमें हम printf में, क्योंकि हमने प्रिंट कैसे करवाना उसकी फॉर्मेटिंग सारी printf के अंदर होती है। जैसे हम कोड्स के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, a इक्वल टू %d, b इक्वल टू %d, तो ये प्रिंटिंग का ही तो फॉर्मेटिंग है ना। जो भी हम लिखेंगे वो वैसे a और b को वैल्यू यहाँ से लेगा और उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द यूजर, अगर आपने ये लिखना है दैट प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो वो भी वही चीज़ है कि जो आप यूजर को प्रिंट करवाना चाहते हो वो मिल जाएगा। प्रिंट्स द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। टेक्स द डाटा वैल्यूज, कन्वर्ट्स देम टू टेक्स्ट stream using the formatting function specified in the control string and passes resulting text stream to standard input output. तो what is written here is कि वो एक वैल्यू लेता है, जैसे डाटा वैल्यू लिया उसने, इट कन्वर्ट्स देम इनटू द टेक्स्ट स्ट्रीम। तो जो भी होगा, सपोज printf के अंदर हमने कुछ कोड्स के अंदर लिखा होता है, वो उसको एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट करेगा यूजिंग द फॉर्मेटिंग फंक्शन स्पेसिफाइड इन द कंट्रोल स्ट्रिंग। तो वट एवर द सेटिंग्स आर अवेलेबल, वट एवर द फंक्शन इज बाय डिफॉल्ट एट द बैक एंड, वो वैसे वाली उसकी सेटिंग में करेगा और उसको जो भी हमारा रिजल्टिंग टेक्स्ट होगा उसको स्टैंडर्ड आउटपुट पे भेज देगा। जो भी हमारा मॉनिटर होगा या जहाँ पे भी हमने प्रिंट करवाना है, तो हमारे आउटपुट डिवाइस पे वो वैल्यू भेज देगा फॉर्मेटिंग के हिसाब से जो भी हम कोड्स में लिखेंगे। Now the control string may contain a 0 or more conversion specifications, textual data and control characters to be displayed. I have already discussed this thing earlier also. So इसको हम control string बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे a इक्वल टू %d वगैरह वगैरह, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो और इसका मतलब ये है कि जितने भी हम सपोज %d या %f लिखेंगे, उतने उतने वो जाके अपनी वैल्यू जाके रिप्लेस कर देंगे उसी सीक्वेंस में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अब सपोज यहाँ पे मेरे पास 2% थे, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे 2 ही आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2% डी है तो 2 ही आर्ग्यूमेंट हैं। अगर मैं तीसरा लिखूंगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर आएगा, वाई एरर कब आएगा? जब मेरे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विल नॉट मैच माय कंट्रोल स्ट्रिंग की कमांड। अगर मैंने यहाँ 2 मांगे थे तो मेरे को 2 ही चाहिए राइट हैंड साइड पे आर्ग्यूमेंट्स में, आर्ग्यूमेंट 1 और 2 ही चाहिए। अगर मेरे पास 2 हैं %d या %d%f है, तो अगर 2 हैं तो यहाँ पे 2 चाहिए। अगर कम ज़्यादा होगा, या इधर कम है तो भी इशू है, अगर इधर ज़्यादा है तब भी इशू है, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए। कंट्रोल कैरेक्टर्स कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड, तो आप ये सब भी कर सकते हो, ठीक है। न्यू लाइन हो गया, टैब हो गया, रिटर्न कैरेक्टर हो गया, ए वाला आई एम अनेबल टू रिकॉल / ए क्या होता है, ये ऑडियो होता है, यस इट इज़ ऑडियो, तो उसमें से आवाज़ आती है, ठीक है। तो यू कैन रन दिस थिंग, आप करके देखो। printf के अंदर हम \n \t सब डाल सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली यू कैन यूज दिस। सो दिस इज ए मैसेज \n \r क्या है? रिटर्न होता है, रिटर्न कैरेज, ओके, ठीक है।
आप उसको रन करके देख लेना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. सो दिस इज ए मैसेज, उसको एज इट इज वो प्रिंट करवा देगा. हाउ डू वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल? अगर आप इंट a और b को प्रिंट करवाना चाहते हो, यू कैन ऑब्वियसली नाउ यू नो दैट इट इज इंटीजर, तो %d आएगा. तो आप printf के अंदर यू कैन सिंपली डू %d and you can go ahead with the a comma b. तो जो भी वैल्यूज होंगे इट विल बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर %d's इन सीक्वेंस. तो जो पहले आएगा वो पहले वाले को मिलेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में वाले को मिलेगा. ठीक है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. यूज स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेरिएबल. सो यहाँ पे इंटीजर है तो %d आएगा, अगर फ्लोट होता तो वी वुड हैव यूज %f. ठीक है, तो दैट्स व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर. ये चीज़ आपको ऑलरेडी मैंने बता दी है विद सम डिफरेंट नंबर्स. सो %d एंड न्यू लाइन %d, तो वो वैल्यू उसको एज इट इज उसी सीक्वेंस में मिल जाएगी. एंड योर आउटपुट विल बी, पहले आप 22 प्रिंट करवा दोगे क्योंकि आप a को 22 दे रहे हो. न्यू लाइन करोगे मतलब अगली लाइन में जाओगे और फिर अगला नंबर b, लेट्स से 14 है तो 14 प्रिंट करवा देगा. दैट्स व्हाट इज रिटन हियर एज द आउटपुट. ठीक है जी. Yes, sir. ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर अभी तक कोई डाउट है, यू पीपल कैन आस्क. तो क्लियर है. Okay. So let's talk about the format specifiers. मैंने अभी तक आपको %d %f बहुत बार बता दिया. There are others also. %c वाला कैरेक्टर के लिए होता है, %s is for string, %u is unsigned integer, %ld is long integer. So we have already seen unsigned and long वाला पीछे भी. So you can use these things in the printf or scanf whenever you are trying to give the input or output. So let's talk about the scanf now. scanf में क्या होता है? scanf इज ए फॉर्मेटिंग, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग है वो देखते हैं. तो रीड फॉर्मेटेड डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड. ऑब्वियसली दिस इज फॉर द रीडिंग पर्पसेस. आप कीबोर्ड के बेसिस पे यू कैन सेंड द वैल्यूज इनटू योर प्रोग्राम. ठीक है, जो भी आप यूजर इनपुट देना चाहते हो, it is compulsory that you will use scanf in that case. So takes text stream from the keyboard, you can input a text. ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, इट कैन बी सिंगल %d, इट कैन बी मल्टीपल %d. ठीक है, उसके अंदर आप कॉमा भी डाल सकते हो. तो आपको वैसे ही इनपुट देना पड़ेगा. तो आप 10,20 करके इसके लिए इनपुट एज इट इज दे दोगे. अगर आपका यहाँ पे %a %b होगा, यू कैन डू इट लाइक दैट. ठीक है, तो आप इसको एज ए स्ट्रिंग इनपुट करोगे 10,20 करके, वो एज इट इज उसको a को 10 दे देगा, b को 20 दे देगा. सर ये फॉर्मेटिंग डेटा का क्या मतलब हुआ? मतलब फॉर्मेटिंग डेटा का कौन से वाला, ये वाला कि ये वाला? सर ये सर वही मतलब स्कैन फॉर्मेटिंग मतलब वही वो, अरे बस इतना ही है. उसने मतलब लिखने वाले ने लिख दिया यहाँ पे दैट स्कैन फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जो भी आप फॉर्मेट में जैसे इनके अंदर लिख रहे हो तो उसको स्कैन करने के लिए होता है. मतलब एक तरह का जस्ट फॉर द इनपुट. ठीक है, स्कैन फॉर्मेटिंग का मतलब इनपुट है. सो let's read the last point. Takes the text stream from the keyboard, extract and formats the data from the stream according to the format control string, and then store the data in a specified for program variable. तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं. जो हमारा सबसे पहला कोट्स है, this is control string and it will help us control कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं string के फॉर्म में, जैसे भी दे रहे हैं. The control specifies the type and format of data obtained from the keyboard and stored in the memory locations pointed by the arguments. So the control specifies type and format of data obtained. Okay, so it means that जो type and format of data है वो हमारा control string के हिसाब से होगा. If you write here anything तो उसको as it is वैसे ही input देना पड़ेगा हमें. ठीक है, आप %d कॉमा %d कर लोगे तो आपको इनपुट के टाइम पे भी 10,20 देना पड़ेगा. तो जो भी आप रूल यहाँ पे फॉर्मेट दोगे, डबल कॉमा डालोगे तो वो डबल कॉमा हमें एज इट इज देना पड़ेगा. एंड from the keyboard and stored in the memory location. So obviously when we write argument 1 here, it means let's say हम %a %b ऐसे करके कर रहे हैं, they will be saved in the RAM. ठीक है, तो a को जो वैल्यू मिली है वो RAM में जाके स्टोर हो जाएगी, b को वाली भी जाके सेव हो जाएगी RAM में, वैल्यू मेमोरी में. So that's what is written here. The arguments are actually variable addresses. So arguments का मतलब वही variable address जो मैंने बोला, ये address का होता है. You people know already
आई गेस। सो अगर आप सिंपल a लिख ले हो, a का मतलब है दैट यू आर जस्ट एड्रेसिंग द वेरिएबल। तो लेट्स से a का एड्रेस इज 1000 and a की value is 10. So if you print the value of a, the output will be 10. But if you print the value of ampersand a, the answer will be 1000. ठीक है, तो मतलब जो आप एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो एम्परसेंड के थ्रू होता है, और वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है दैट द आर्ग्यूमेंट्स आर एक्चुअली वेरिएबल एड्रेसेस। यहाँ पे हमारे एड्रेसेस होते हैं स्कैनफ के अंदर, वेयर ईच पीस ऑफ डेटा आर टू बी स्टोर्ड। सो वट एवर एड्रेस जो भी बैकएंड पे होगा वो हमें मिल जाएगा। इग्नोर्स ब्लैंक स्पेसेस, टैब्स, न्यू लाइन्स, जो भी आप बीच में कॉमा डालोगे, कुछ भी डालोगे, वो उसको इग्नोर कर देता है और बाकी बस आर्ग्यूमेंट्स को एज इट इज यूज कर लेता है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप कॉमा कॉमा डाल भी दोगे तो वो इग्नोर कर देगा। ये वाले कॉमास को नहीं इग्नोर करेगा, ये वाले हमारे कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर वाले कॉमास को इग्नोर कर देगा। So scanf का example you can see here. We have two variables int and float x. %d %f करोगे, %i का मतलब है कि मुझे एक इंटीजर इनपुट करवाना है, %x का मतलब है इन दिस केस फ्लोट इनपुट करवाना है, तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। तो इट इज i, दिस इज 1, दिस वन इज x। तो लेट्स से i को हमने 10 दिया, x को हमने 3.14 दिया, वो एज इट इज रैम में आ जाएगा because we are passing the addresses of the variables as the arguments in scanf. सेम चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको, बस नंबर्स यहाँ पे अलग हैं। तो वही चीज़ है, बस 18 और 7.3 था, मैंने 10 और 3.14 लिया था। तो 18 हमें i को मिल गया, हमारे x को 7.3 मिल गया। दैट नंबर विच वी आर गिविंग फ्रॉम द कीबोर्ड एज इनपुट, जो हमारी स्ट्रीम जा रही है वो एज इट इज उसको जाके वैल्यू साइन करवा देगी। ठीक है जी, तो इज इट क्लियर स्कैनफ? यस सर। ओके, if you have any doubt anyone you can ask. सर आपने कहा था कि हम एड्रेस इनपुट करते हैं उसके अंदर, हम एड्रेस नहीं इनपुट करते, हम उस एड्रेस के लिए वैल्यू इनपुट करते हैं। वो स्कैनफ का काम है कि उसके कौन सा एड्रेस से उसको एलोकेट करवाना है रैम के अंदर। ठीक है, मतलब मैंने ये बोला है कि जब हम %d दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से तो नंबर ही दे रहे हैं, है ना। हमने 18 दिया यहाँ पे, तो वो 18 सेव तो हो जाएगा, लेकिन जो उसका एड्रेस है वो जो लेट्स से 1000 है, वो 1000 होगा या कुछ और नंबर होगा, वो स्कैनफ का काम है हमें एड्रेस दिलाना। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एड्रेस को ही पास करेंगे, हम अपनी तरफ से बोलेंगे कि तू मेरे से वैल्यू ले ले, लेकिन उसको अपने एक एड्रेस पे जाके सेव कर ले। ठीक है, ओके। इन दिस केस सी दिस केयरफुली, जो हमारा प्रिंटफ के अंदर है उसको एज इट इज प्रिंट करवाना है। तो न्यू लाइन, ठीक है, सपोज यहाँ पे थे, हम न्यू लाइन पे चले गए और न्यू लाइन पे जाके हम रिजल्ट कॉलन एज इट इज डाल दिया। %d में 12 आ गया, %c में a आ गया, f में 2.3 आ गया। तो ये सारे एज इट इज प्रिंट हो गए, 12a 2.3। एनी डाउट इन दिस? नो सर। मतलब हम डायरेक्ट नंबर्स पे डाल सकते हैं उधर वेरिएबल्स की? वो वही तो कर रहा हूँ मैं शुरू से। प्रिंटफ में मैंने हमेशा ये बोला है कि अगर मैं यहाँ पे ABC लिख रहा हूँ, अगर मेरे 3 यहाँ पे वेरिएबल हैं, वो एज इट इज उसी सीक्वेंस में जाके मिल जाएंगे। यही तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। नहीं सर, मतलब मैं वो नहीं कह रहा था। और जैसे हम पहले वेरिएबल्स लिखते थे ना, पर हाँ यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट नंबर लिख दिया, तो वही चीज मैं कह रहा था, हाँ मतलब डायरेक्ट हाँ नंबर हाँ लिख हाँ सकते हाँ, हैं। यस यस यस, डायरेक्ट नंबर तो लिख ही सकते हैं यार। मतलब अगर मुझे यहाँ पे int a = 12 और int c = a ऐसे नहीं लिखना, तो वो 3 लाइनें छोड़ के हम डायरेक्ट नंबर्स यहाँ पे वैल्यूज पास कर दो। ओके ठीक सर। है, ये कर सकते हैं। सर अब जैसे यहाँ पे हमने करेक्टर की जैसे कोई स्मॉल ए की वैल्यू होती है साइन, तो हमने यहाँ पे उसको मतलब सिंगल कॉमास में डालना है ताकि हम एज इट इज ए प्रिंट करें। देखो %c का रूल होता है कि वो एक सिंगल बाइट का होता है, 1 बाइट होता है। ठीक है, और करेक्टर को हम हमेशा सिंगल कोड में लिखते हैं, रूल है। अगर सर मुझे ये लिखना है, जब ये भी भी सिंगल। डिक्लेयर करना है, मतलब वो हाँ करना है। हाँ, मतलब जब भी देखा। %c को वैल्यू मिलेगी वो सिंगल कोट्स में मिलेगी। ओके सर। ओके ओके, मोर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। सो देयर इज आल्सो गेट्स एंड पुट्स, ये स्ट्रिंग्स के लिए होता है। लेट्स सी, तो हो क्या रहा है, इनपुट के लिए गेट्स होता है, ठीक है, गेट स्ट्रिंग, एंड दिस इज पुट स्ट्रिंग। तो इसका अगर याद रखने के लिए रखना है तो S इज फॉर स्ट्रिंग। गेट का मतलब गेट करो, इनपुट करो, पुट मतलब आउटपुट करो, प्रिंट करवाओ। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो देयर इज ए मेन फंक्शन, and within that main function I am declaring a string is array of characters. So in this case, अगर मैंने सिर्फ char s लिखा होता
तो KRS के केस में मैं सिर्फ s को ज़्यादा से ज़्यादा एक सिंगल कैरेक्टर दे सकता था, लेकिन जब मैंने उसको s के साथ ऐसे नंबर डाल दिया, इसका मतलब मैंने उसको एक सिंगल नहीं बल्कि उसकी लेंथ डिफाइन कर दी कि उसकी 20 की लेंथ है, ठीक है। तो जब भी मैं उसकी वैल्यू दूंगा तो वो 20 बाइट लेगा और 20 बाइट में कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करवाएगा। अगर मैंने 20 बाइट करवा के भी अगर सिर्फ साहिल ही लिखा तो बाकी की खाली जगह वेस्ट हो जाएगी। आई विल शो यू इन दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो। सो एंटर स्ट्रिंग गेट्स करवाया और हेयर इज योर स्ट्रिंग पुट्स करवाया। यहाँ पे फिर रन करके बता दो इसको कैसे। हाँ रन कर रहा हूँ मैं, मुझे स्लाइड में कुछ ठीक तो नहीं अगर हो, नहीं हमने ठीक इसके है। ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी तो ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी मतलब कौन सी ब्रैकेट जैसे के आपने अंदर? char s20 लिखा है राइट, हाँ हाँ हाँ, तो वैल्यू और आप नहीं वैल्यू नहीं रखी, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, तभी तो हम गेट्स करवा रहे हैं, तभी तो हम इनपुट करवाएंगे ना। जो ये इनपुट करवाएंगे वो एज इट इज उसको मिल जाएगी जाके। मैं इसको रन कर रहा हूँ, मुझे एक सेकंड दो बस। ओके, कमिंग टू द कोडिंग साइड। तो अगर मैं यहाँ पे KRS 20 मैंने यहाँ पे ये किया, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, सिर्फ डिक्लेयर करा, वैल्यू नहीं दी उसको, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा एंटर योर स्ट्रिंग, तो मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट कराता हूँ, एंटर योर स्ट्रिंग, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने एंटर करवाना है तो मैं करूँगा गेट्स एस, तो मुझे एस को इनपुट देनी है वैल्यू कोई भी, ठीक है, जैसे मेरा नाम मैं डाल दूंगा, देन पुट्स हियर इज योर स्ट्रिंग एंड पुट द वैल्यू। तो हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसमें वो %d वाला केस खत्म हो गया, आप ऐसे कर सकते हो, हियर इज योर स्ट्रिंग एंड अगेन आई विल हैव टू डू पुट्स एस, तो मैं उसको एज इट इज प्रिंट करवा दूंगा। देखते हैं, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसमें कुछ वार्निंग्स आई हैं, वो ये कह रहा है कि गेट्स को यूज़ मत करो भाई, डेंजरस है, इसमें कुछ इश्यूज होते हैं, तो हम इसको इग्नोर करते हैं अभी के लिए, हम एंटर द स्ट्रिंग करते हैं, लेट्स से राइट साहिल, ठीक है। तो डेंजरस कैसे? हाँ जी, सर डेंजरस कैसे मतलब? वो इसके बारे में पढ़ना आप और ज़्यादा, ठीक है। गेट्स एक्चुअली क्या है कि गेट्स और पुट्स ना हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, एंड आई थिंक इसका एक मेजर रीज़न है दैट आई थिंक बैकएंड पे ना बफर ओवरफ्लो नाम का एक एरर होता है, इसके बारे में पढ़ लेना इफ़ यू वांट टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड बफर ओवरफ्लो। उसमें क्या होता है कि इसको ना पता नहीं चलता कि मुझे कितना लेना है, वैल्यू को इनपुट करवाना है, तो वो कभी कभी क्या होता है, अगर मैंने लिमिट 20 की भी रखी है, मैं उससे ज़्यादा भी दूंगा तो वो आगे के बाकी सेटिंग को ख़राब कर देता है प्रोग्राम के, ठीक है। तो मैंने तो उसका रीजन लिखा चैट में। ठीक है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, तुमने भी ये लिखा कि इट डज नॉट परफॉर्म द बाउंड चेक ऑन द साइज ऑफ द इनपुट, मैंने भी वही बोला कि वो ओवरफ्लो कर जाता है, बफर ओवरफ्लो बोलते हैं इस चीज को, इस एरर को। सो यस सर, एंटर योर यस। स्ट्रिंग साहिल, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैंने सपोज इसको 10 कर दिया और मैं अगर पूरा नाम अपना लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट्स रन। अगर मैंने यहाँ पे सपोज नाम छोड़ो यार, 10 से ज़्यादा लिखना है, तो ये 10 से ज़्यादा है, ठीक है, लिमिट मेरी क्रॉस हो गई है, तो मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा। उसने एज इट इज उसको प्रिंट करा दिया, लेकिन ये कह रहा है स्टैक स्मैशिंग डिटेक्टेड टर्मिनेटेड, मतलब इसने एरर दे दिया यहाँ पे एक, मतलब चीज़ बता दी कि ठीक है मैंने तुम्हारा एज इट इज करवा दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है, बाकी का अगर ऊपर नीचे की कोई चीज़ होगी बैक एंड पे रैम में, तो ये उसको जाके ओवरराइड कर देगा, और ये डेंजरस होता है। इस एरर को हम बफर ओवरफ्लो एरर बोलते हैं, कि वो रेंज रेंज चेक ही नहीं कर रहा, 10 है 20 है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने दो, ठीक है, उसको ये नहीं पता रुकना कब है, वो बाउंड चेक नहीं कर रहा अपना रेंज के हिसाब से। दैट इज वाई वी डू नॉट यूज दिस थिंग गेट एस पुट एस। समझ आ गया हुआ क्या है? यस यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। सो नाउ कमिंग टू सी ऑपरेटर्स, लेट्स टॉक अबाउट 5 minutes more. C operators. So let's see how many different types of operators are there and how this works. So to build an expression, obviously now some operators are to be used. जैसे 4+5 है, तो ये एक मेरा बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसने मेरे 2 ऑपरेंड यूज कर लिए। आई होप यू हैव आइडिया अबाउट दिस। अगर जब भी मैं सिंगल प्लस यूज करता हूँ, उसको 2 नंबर चाहिए, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, ठीक है। नाउ बिकॉज दीज नंबर्स आर 2, लेट्स से दिस इज माई, इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड, तो ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2।
तो मेरे को 2 ऑपरेंड चाहिए टू वर्क विद द सिंगल ऑपरेटर। तो इस केस में दिस इज माय बाइनरी ऑपरेटर। Why? Because it needs 2 operands. Can anyone tell me what is unary operator? Which operates on only one operand. One. Yes, Yes, sir. तो हम a प्लस प्लस कर रहे हैं, प्लस प्लस a कर रहे हैं, तो ये सिंगल ऑपरेटर पे काम कर, ऑपरेंड पे काम कर रहा है a पे, ठीक है। इसमें 2 नहीं आए, इसमें b नहीं आया। तो अगर मैं प्लस प्लस a कर रहा हूँ, a प्लस प्लस कर रहा हूँ, माइनस माइनस a कर रहा हूँ, या a माइनस माइनस कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन ए सिंगल ऑपरेंड। तो सिंगल ऑपरेंड पे काम करोगे तो आपका वो यूनरी ऑपरेटर है। Similarly, there is a ternary operator also that you will cover in the lab. Okay, so continuing with this, here my 4 and 5 are the operands and plus is my operator. तो ये नाम याद रखना कि ऑपरेंड क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटर काम करता है ऑपरेंड्स के ऊपर, एंड ऑपरेंड्स डिसाइड करते हैं जितने हमारे होंगे उसके हिसाब से हम यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर बोल देते हैं कि कितने ऑपरेंड यूज कर रहे हैं। So now C contains following groups of operators. There are multiple types of operators. Arithmetic होता है, assignment होता है। Arithmetic कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। असाइनमेंट क्या होता है? डबल इक्वल टू नहीं, सिंगल इक्वल टू, या फिर असाइनमेंट तो यही होता है कि आप वैल्यू साइन कर रहे हो तो और सिंगल एक इक्वल टू, प्लस इक्वल टू भी होता प्लस है, इक्वल टू भी होता है, यस, क्योंकि अब इसमें भी माइनस इक्वल टू। हाँ, तो ये सारे आ जाएंगे, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, जो भी आप असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप कर रहे हो तो a इक्वल टू a प्लस 5 करो, वो भी एक आपका असाइनमेंट ही है। लॉजिकल होते हैं कौन से बताओ? ग्रेटर देन, एंड एम्परसेंट एंड और वाला एक जो 2 पैरेलल लाइंस आती हैं, हाँ, तो इसमें और क्या एक होता है? नॉट, एक नॉट होता है, ठीक है। बस। हाँ, तो तो ये बिटवाइज लेस देन ग्रेटर देन है ना? नहीं, बिटवाइज होते हैं एक्सॉर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और। तो बिटवाइज और बिटवाइज एंड ये अलग होते हैं, ये वाले ऊपर वाले एंड और से। इसको हम डिटेल में देखते हैं कमिंग स्लाइड्स में, नो वरीज। एंड देयर आर अदर मिसलेनियस ऑपरेटर्स, देखते हैं क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सो लेफ्ट नाउ शिफ्ट राइट शिफ्ट भी है ना? वो भी बिटवाइज ही है, यस। तो देखो सुनो, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सारे आगे, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले। एंड प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, और पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, तो ये आप देख सकते हो। एंड इसमें क्या होता है, इफ आई से a इक्वल टू 10, ठीक है, एंड आई डू a प्लस प्लस, इन फैक्ट आई डू दिस थिंग printf, वो परसेंट डी वाला खुद इमेजिन कर लो, उसके बाद a प्लस प्लस कर दिया, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा? वर्सेस printf, उसके बाद प्लस प्लस a, इसका आउटपुट आएगा 10, इसका आउटपुट आएगा 11। उसके पीछे एक रीजन है, रीजन ये है कि जो मेरा प्लस होता है वो अगर मैं बाद में डाल रहा हूँ तो वो पहले प्रिंट मारेगा, फिर अगली लाइन में जाने से पहले उसको अपडेट करेगा। तो मतलब यहाँ पे आते आते वो उसको 11 कर देगा, और इस केस में बल्कि आंसर मेरा 12 आएगा अगर मैं सीक्वेंस में ये दोनों स्टेटमेंट चलाता हूँ। आई विल शो यू दिस एंड देन वी विल एंड द लेक्चर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो इफ आई से, लेट्स से int a equal to 10, and now I do this thing printf %d a प्लस प्लस, और इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, प्लस प्लस a। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये a प्लस प्लस है ये पहले a को वैल्यू को यहाँ भेजेगा परसेंटेज छपने के लिए, ठीक है, वो छाप देगा, प्रिंट कर देगा, इट विल बी 10, एंड देन अगली लाइन पे जाते जाते वो उसको 11 करके भेजेगा, और यहाँ पे आके वो पहले ही उसको +1 करेगा, 11 को 12 करेगा, तो आउटपुट विल बी 10 and 12। दिस इज द आउटपुट 10 and 12, ठीक है। मैं न्यू लाइन करता हूँ सो दैट इट इज ऑन न्यू लाइन। सो 10 and 12 आर द आउटपुट्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। इसको समझो कि a प्लस प्लस और प्लस प्लस a क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ int b इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ %d 3 बार a प्लस 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 b and a plus b. Can anyone tell me the output now? a प्लस प्लस 10, में आ जाएगा 11, 10 11 11 10 और 12 और 21, 20 10, 11, 21. 22 10, 11, 22, 21. Answer is 10, 11, 22 10, 11, 20 आउटपुट है इसका, 20 आएगा। वाई? इसके पीछे रीजन है, ये राइट टू लेफ्ट चलता है, ठीक है। जब भी हम printf को रन करेंगे सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा बैकएंड पे, फिर ये एग्जीक्यूट होगा बैकएंड पे, फिर ये एग्जीक्यूट होगा बैकएंड पे, जो जो वैल्यू मिलेंगे उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। सबसे पहले ये चला तो इसने 10 + 10 20 करा, इसने b को 11 करा, और इसने a को प्रिंट करने के लिए 10 किया, बट अगली लाइन में अगर मैं दोबारा प्रिंट a करूंगा
तो मेरा वो 11 प्रिंट करवाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे %d विद न्यू लाइन (a, b). अब देखो अगर मैं इसको आउटपुट करूंगा तो इट विल बी 10 11 20 तो आएगा ही आएगा। अगली लाइन में आएगा 11 and 11। ठीक है, ये देखो अगली लाइन में जाते जाते उसने a को 11 कर दिया, पर प्रिंटिंग के टाइम पे पहले उसको 10 ही रखा। समझ में आ गया हुआ क्या है? यस सर। ओके Yes, sir. ओके देन ओके देन आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। सर हाँ जी सर एक बार वो बता दो, पहले वाले में 12 क्यों आया था जब आपने ++a किया था? कहाँ पे 12? अच्छा पहले 12 क्यों आया था? यस पहले सर। 12 इसलिए आया था जी क्योंकि, एक सेकंड, अगर मैं इसको, ये था ना, तो इस केस में अगर मैंने इसमें रन किया तो उसने a जाते जाते तो पहले 10 ही प्रिंट रखा, पर अगली लाइन में जब वो गया तो वो इसको a को 11 करके उसने भेजा। अगर यहाँ पे आप ++a की बजाय सिर्फ a प्रिंट करवाओ तो पहले वो 10 प्रिंट करेगा, अगली लाइन में 11 प्रिंट करेगा। देखो हो रहा है? यस सर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ++a कर देता हूँ वो 11 को भी 12 करके प्रिंट करेगा। सिंपल है। क्योंकि उसने छापने से पहले उसको प्लस कर दिया। अगर मैंने नहीं किया ++a तो उसने नॉर्मल 10 और 11 किया। क्यों? क्योंकि उसने जाते जाते पहले तो a को एज इट इज प्रिंट कर दिया, पर अगली लाइन में जाते जाते उसको 11 करके भेजा। जब अगली लाइन में 11 करके भेजा तो उसने 11 एज इट इज प्रिंट कर दिया। यस और नो? यस सर। एंड आफ्टर दैट अगर मैं इसको यहाँ पे 11 को भी ++a कर देता हूँ कि चल ठीक है यार तू एक बार दोबारा कर दे, तो वो 11 को भी 12 कर देगा प्रिंट करने से पहले ही। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। Okay. So do revise these concepts. You have the PPT on the LMS, and then we will continue from the next class as it is. ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. Okay. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Okay. you, sir. Bye.